So see, this is the PDF of NCERT textbook. I will move towards the methods of preparation first because these are completed in previous classes. UPEC naming has been also completed. And then here methods of preparations from alkene. So by the best process of preparations of alkene, the starting materials is alkene, because we can use alkene for the preparations of alcohol in the best way, right? So see the first reaction, that is called preparations of alcohols by alkenes, right? So first one is called acid catalyzed hydration. Hydration means addition of water. So here addition of water will take place in the alkene molecules in two different ways. First, that we generally call it simple addition reactions, and second, that is called Markovnikov's additions. So Markovnikov's addition takes place in presence of alkenes having unsymmetrical nature, right? So if it is unsymmetrical alkenes, then different types of products will form as it is stable products. तो इसके लिए एक थोड़ा सा हम 2 मिनट का एक वीडियो देखते हैं जो एनिमेटेड है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस. तो यहाँ प्रिपरेशंस का ही हम एक एनिमेटेड वीडियो शो कर रहे हैं, राइट? सो सी दिस एनिमेटेड. If the alkene is unsymmetrical, meaning that different groups are attached to the carbons of the double bond, then two possible alcohol products could form. How do we determine which alcohol will be the major product of the reaction? Markovnikov's rule allows us to predict the regioselectivity. The hydrogen will add to the carbon with more hydrogen atoms bonded to it. The hydroxyl group adds to the carbon with fewer hydrogen atoms bonded to it. Let's work through a problem to show the application of Markovnikov's rule in acid-catalyzed hydration of alkenes. Propane. Markovnikov's rule क्या होता है? ये स्टेबल प्रोडक्ट देता है, राइट? तो यदि हम लोग कोई भी अल्किन्स में Markovnikov's रूल लगा करके अल्कोहल्स बना रहे हैं, तो अल्किन्स कैसा होना चाहिए? दैट मीन्स अल्किन मस्ट बी अनसिमेट्रिकल. तो यदि अनसिमेट्रिकल अल्किन्स में हम लोग वाटर के एडिशंस कराएंगे, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट्स बनेगा, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल्स या 3 डिग्री अल्कोहल्स बनेगा. ये हम लोग को कैसे पता कि 2 डिग्री या 3 डिग्री बनेगा? सो इट सेज दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस व्हिच फॉर्म्स बाय द अल्किन्स. अल्किन से किस तरह का कार्बोकैटायंस बनेगा, ये इसको डिसाइड्स करेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट्स स्टेबल होगा, ठीक है? सो हियर ए क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस प्रॉब्लम्स. प्रोपीन, सो प्रोपीन एक अल्किन्स है और ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि प्रोपीन का यदि हम लोग डायग्राम बनाएं तो 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइडेड नहीं हो सकता है, राइट? So propane reacts with water in the dilute solutions of sulfuric acids. What are the 2 possible products of the reaction? Identify the major products. तो 2 तरह का alkenes बनेगा. कौन कौन? एक मेजर प्रोडक्ट, दूसरा माइनर प्रोडक्ट्स. तो कौन कौन होगा उसको देखो यहाँ एनिमेशंस में. Reacts with water in a dilute solution of sulfuric acid. What are the 2 possible products of the reaction? Identify the major product. Start by drawing the structure of propane. Notice that one carbon in the double bond has one. So it is clear that in propane it is unsymmetrical alkenes because it cannot be divided into 2 equal half. हम लोग इसको 2 हाफ में नहीं बांट सकते हैं, इसको आधा आधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 कार्बन को बांटेंगे तो 1 and half तो नहीं हो सकता है. डबल बॉन्ड्स के दोनों साइड यदि इक्वल हाफ रहता तो ये सिमेट्रिकल होता है. जैसे ब्यूट 2 इज सिमेट्रिकल बट ब्यूट 1 इज नॉट सिमेट्रिकल, राइट? तो ब्यूटीन का जो 2 बनेगा आइसोमर्स, एक ब्यूट 1 इन और एक ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन सिमेट्रिकल होगा. कैसे सिमेट्रिकल होगा हम उसको वर्चुअल व्हाइट बोर्ड में अभी बता रहे हैं. पहले इस एनिमेशन को देखो, इसका प्रिपरेशंस. One hydrogen atom attached while the other has 2. Draw the 2 possible alcohols that could form.
Using Markovnikov's rule, we can determine that the upper product shown is the major product of the reaction, the H atom added to the carbon with more hydrogen atoms. The lower structure is the minor product of the reaction. It's important that you understand the mechanism of acid-catalyzed hydration of alkenes. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशंस का मैकेनिज्म, बिकॉज it is given in your NCERT textbook and in all types of examinations questions arises from this particular topic, that is mechanism of the acid catalyzed hydrations, क्योंकि इसका mechanism काफ़ी important है. So it is 3-step mechanism. इनिशिएशन नहीं, इसमें क्या होता है, प्रोटोनेशन. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे हम लोग इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन क्लास 11 में पढ़े थे, उसी तरह से 12 में यहाँ भी 3 स्टेप का होगा, लेकिन वो क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो मैकेनिज्म विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो यहाँ पहले होगा प्रोटोनेशंस, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड देन डीप्रोटोनेशन. So we'll go through each step in detail. Step 1 involves the formation of a carbocation. The carbon-carbon double bond becomes protonated to form a stable carbocation. So this step is called protonation. Proton का addition हो रहा है. Then protonation हुआ. Water, acting as a nucleophile, attacks the carbocation to form an oxonium ion. So oxonium ion. Finally, और the oxonium ion loses a proton to water, acting as a loose base. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो ऑक्सोनियम आयन्स है, ऑक्सोनियम आयन्स को हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स बोल सकते हैं, राइट. मतलब अल्कोहल में प्रोटोन लगा हुआ है, तो इसको ऑक्सोनियम आयन्स बोलें या प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलें. अब यहाँ से प्रोटॉन्स को हटाना है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन. तो देखो यहाँ से डीप्रोटोनेशन कराया जा रहा है, एक प्रोटॉन को निकाला जा रहा है, तो वाटर के साथ प्रोटॉन चला गया, अल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट्स, राइट. सो दिस इज द मैकेनिज्म. पहला स्टेप प्रोटोनेशन हुआ, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक और तीसरा स्टेप डीप्रोटोनेशन, राइट. To form the alcohol. A second synthetic route to prepare alcohols is by the hydroboration oxidation of alkenes. So This can be summarized as a two-step process. First, the alkene reacts with diborane to form a trialkyl borane compound. The series. तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, अल्किन्स रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्काइल बोरेन्स. डाइल्काइल बोरेन्स क्या होता है, तुम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, बोरॉन्स का हाइड्राइड्स BH3, और BH3 का 2 मॉलिक्यूल्स यदि कंबाइन करेगा तो इट विल कॉल्ड डाइमर ऑफ बोरेन, दैट इज डाइबोरेन. सो व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन देन इट फॉर्म्स मोनोअल्काइल बोरेन. सी द फर्स्ट स्टेप मोनोअल्काइल बोरेन राइट साइड में बना हुआ है. Of steps that forms the addition product trialkyl borane, and this further reacts with alkene gives trialkyl boranes, right. तो ये देखो हाइड्रेशंस में पहला स्टेप क्या हो गया, बोरॉन का एडिशंस करा रहे हैं अल्किन्स में, तो पहले अल्काइल बोरेन हुआ, फिर से सेकंड स्टेप में सेम प्रोसेस करा डाइल्काइल बोरेन एंड थर्ड फाइनली ट्राइल्काइल बोरेन्स. नाउ दिस ट्राइल्काइल बोरेन is oxidized in presence of hydrogen peroxide and sodium hydroxide. We get the final product, that is alcohol, and the alcohol formed is against of M rule. M rule के उल्टा प्रोडक्ट बनेगा alcohols. Is shown right? here. See the product formed here. Then the trialkyl borane is oxidized by hydrogen peroxide in aqueous sodium hydroxide to form the corresponding alcohol. Note that water is not a reactant in the hydroboration oxidation of alkenes. A particularly useful feature of this synthetic route is the resulting anti-Markovnikov's hydration of the alkene. In contrast to acid-catalyzed hydration, hydroboration oxidation results in the hydroxyl group attaching to the carbon with more hydrogen substituents. Let's do a practice problem. Draw the structure of the main organic product formed
when 2-methyl-2-butene is reacted with diborane in a suitable solvent, followed by treatment with basic hydrogen peroxide. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, Start by पहले drawing the जब structure हम of लोग the रिएक्टेंट दिया reactant. हुआ है 2-methyl Since this 2-butene, reaction तो uses हम लोग रिएक्टेंट को hydroboration लिखेंगे, फिर oxidation of the डाइबोरेन ऐड करेंगे alkene, और फिर ट्रायल the major कैलबोरेंस बनाएंगे। product will ट्रायल show कैलबोरेंस जैसे ही मेरे anti-Marconic पास बन गया, addition. अब हम लोग को उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा देना है, राइट। सो सी 3 स्टेप में पहले मोनोल कैलबोरेन, फिर डाइल कैलबोरेन, फिर ट्रायल कैलबोरेन बनाना है। जब ये बन चुका है तो फाइनली हम लोग उसको H2O2 के साथ ट्रीट करा देंगे NaOH में। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी द अल्कोहल एंड इट इज एंटी मारिकोनिकॉप्स प्रोडक्ट्स, एंटी मारिकोनिकॉप प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। Therefore, the hydroxyl group will attach to the carbon with more hydrogens, as shown here. Another route for the preparation of alcohols is by the reduction of aldehydes and ketones. तो एल्डिहाइड और कीटोन को This reduce करके भी हम लोग involves बना the सकते addition हैं। of hydrogen gas in the presence of a suitable metal catalyst such as platinum, palladium or nickel. तो यदि हम लोग ये सब The overall रिड्यूसिंग एजेंट्स के reaction for the प्रेजेंस में रिड्यूस कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देगा, राइट। सो एल्डिहाइड का रिडक्शंस करा रहे हैं हम लोग, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोग ले सकते हैं, मेटल कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, अदर भी ले सकते हैं, लेकिन Catalytic products reduction of an available हैं। aldehyde to a कीटोन्स में हम primary लोग को alcohol थोड़ा is shown here. रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे This method लिथियम एल्युमिनियम also हाइड्राइड works या for the reduction सोडियम of बोरोहाइड्रेट्स। ketones. तो यहाँ हम लोग ये भी ले सकते हैं PTPDNI, बट सुटेबल प्रोडक्ट्स Aldehydes इससे and अच्छा बनेगा कि ketones powerful हम can लोग also be reducing reduced agents by लेंगे। treating them with ठीक है? reducing तो फर्क agents ये है such as कि sodium कीटोन 2D borohydride अल्कोहल देगा, or lithium सोडियम aluminium बोरोहाइड्रेट्स में देख hydride. रहे हैं, लिथियम बोरोहाइड्रेट देख रहे The हैं, ये बेटर overall रिएजेंट्स reduction हैं। of a ketone to form a secondary alcohol is shown here. Aldehydes can also be reduced in a similar fashion. तो ये काफी इम्पोर्टेंट Can you answer this question on your own? Give the structure and IUPAC name of the product expected from the catalytic reduction of 2-pentanone. When you draw the correct structure of 2-pentanone, you should immediately recognize it as a ketone, as the carbonyl group is in the middle of the chain. The तो catalytic carbonyl reduction of a groups oxidize हो ketone जाएगा, produces a secondary alcohol. रिड्यूस हो जाएगा और वो The product alcohol में is convert हो जाएगा। 2-pentanol. ठीक है, Alternatively, you could have used sodium borohydride or lithium aluminium hydride instead of hydrogen gas with a metal catalyst. ये जो सोडियम बोरोहाइड्रेट लिखा हुआ है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स है कीटोन के लिए, क्योंकि कीटोन को थोड़ा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, बिकॉज बोथ साइड्स आर कनेक्टेड विद द बल्की ग्रुप्स, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, जहाँ इसको और डिटेल्स में हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट, 2 स्टूडेंट्स आर इन लॉबी, सत्यप्रिया एंड प्रियांशु कुमार, आई एडमिट बोथ। सो ये क्लास 11 का है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स करते हैं, राइट। तो हम लोग अभी 3 मेथड्स पढ़े, तो वो 3 मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है। फर्स्ट और सेकेंड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स है, बिकॉज वी गेट सुटेबल प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स मोर देन 90%। तो एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स का कितना है, 90% से भी ज़्यादा है। सो इट इज़ द बेस्ट प्रोसेस, राइट। तो हम लोग यहाँ से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के लिए यूनिट 11 पहले NCERT को ले रहे हैं। तो ये हेडिंग डाल रहे हैं, फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो हम सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट को कॉपी कर रहे हैं अपने वाइट बोर्ड पर, राइट।
थोड़ा सेट कर लेते हैं। Let some students lobby. सो हम लोग ये बनाना है फर्स्ट रिएक्शंस बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशंस ऑफ तो अल्किन रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड्स, लुइस एसिड नहीं मिनरल एसिड्स, राइट। लुइस एसिड नहीं लेना है, मिनरल एसिड लेना है। मिनरल एसिड मतलब HCl H2SO4 ये सब। तो dilute mineral acids as a catalyst to form alcohol. In case of unsymmetrical alkene, the addition reaction takes place accordance with the Markovnikov's rule. तो हम लोग यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल्स। तो हम 2-3 रिएक्शन बना देंगे, रेस्ट 10 रिएक्शन होमवर्क में घर से स्टूडेंट्स को बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। So the first reactions I am just taking the simplest alkene, that is called ethene, right? So ethene on treatment with water in presence of dilute mineral acids. तो dilute mineral acid में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ dilute सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, right? It will give alcohol. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 and OH. सो इथिन इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स था। कैसे सिमेट्रिकल है? तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट इक्वल हाफ, दोनों साइड इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहाँ कोई मार्कोनिकॉफ्स रूल का नीड नहीं है। बट इफ बोथ साइड्स आर डिफरेंट देन इट विल बी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे एक हम अनसिमेट्रिकल का बनाते हैं। सो सी द सेकंड एग्जांपल्स आई एम टेकिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दैट इज प्रोपीन। CH3 single bond CH connected with multiple bonds, and it is again treated with H2O molecule in presence of dilute mineral acid like dilute H2SO4, right? तो dilute H2SO4 ये क्या है? ये कैटलिस्ट है, ये कैटलाइज करेगा रिएक्शंस को, right? So reaction is catalyzed in presence of dilute mineral acids. Then we get the final products according to Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule लग रहा है because ये unsymmetrical alkene है। कैसे unsymmetrical है? तो see, if I divided two equal half, so we will not able to divide into equal proportions. तो equal proportions में divide नहीं हो रहा है, that means it is unsymmetrical alkenes. तो ये unsymmetrical alkene होगा क्योंकि equal half हम लोग नहीं divide कर रहे हैं, so it is unsymmetrical. राइट तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ही हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा सकते हैं। सिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ्स का कोई नीड नहीं होता है। प्रोडक्ट्स जैसे बनाएंगे सही बनेगा। तो क्या होगा एक्चुअल में? मेन प्रोडक्ट्स जो बनेगा वो एज पर द मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म बनेगा। तो मैकेनिज्म क्या बोलता है? एक बार मैकेनिज्म को चेक करो। सो सी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन्स इज मोर स्टेबल। तो हम लोग को कार्बोकेटाइन्स जो बनाएंगे ये 2 डिग्री बनेगा, राइट? ये हम लोग को पहले से पता है। तो ये बॉन्ड किधर ब्रेक करेगा? ऑब्वियसली इधर ब्रेक करेगा, तब तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा एंड इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब यदि बीच वाला कार्बन जो 2 डिग्री है वो कार्बोकेटाइन्स बन चुका है, तो वाटर का अटैक कराना है। तो वाटर में 2 पार्ट होता है, क्या क्या? सी द फर्स्ट पार्ट इज H+ आयन एंड सेकेंड पार्ट इज OH-। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब कौन कहाँ अटैक करेगा? ये हम लोग देख सकते हैं कि प्लस है H, तो नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो H चला जाएगा इधर इस कार्बन पर, ये H चला जाएगा इसके ऊपर, राइट? और ये OH चला जाएगा इस कार्बन पर। तो ये समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्रोडक्ट्स जो बनेगा वो मेन प्रोडक्ट्स मेरा इस मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो नीचे हम यहाँ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो CH3, अब यहाँ नीचे में OH आ गया, यहाँ एक H था, यहाँ एक H जुट गया, तो CH3, दिस इज द मेन प्रोडक्ट्स।
बट इसके साथ साथ 10 से 20% तक अदर बाई प्रोडक्ट्स भी बनेगा, दैट इज द अल्कीन। तो इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ कुछ CH3, CH2, CH2OH ऐसा भी बनेगा, बट ये माइनर होगा, मतलब इसका 15 से 19% तक एबेंडेंस होगा, राइट। और ये कितना होगा, अप टू 80%। तो जो मेन प्रोडक्ट हम लोग देखें बनाए हैं, ये कितना होगा, तो ये नियर अबाउट 80% या उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 81-82%, ठीक है। तो जो मेन प्रोडक्ट्स बनेगा वो मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट्स ही बनेगा। तो मार्कोनिकॉप्स का स्टेटमेंट्स क्या है, फिर से हम लोग यहाँ से रिएक्शंस को देखते हैं तो समझ पाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स है क्लास 11 में, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, HCl, HBr, ये सब रहेगा, देन द negative part of that polar molecule is added to that carbon atom which has less number of hydrogen atom, जिसमें हाइड्रोजन कम से कम होगा उसी में वो नेगेटिव पार्ट जुटेगा। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बीच वाला कार्बन में है, तो बीच वाला कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, उसमें नेगेटिव पार्ट जुटेगा, प्रोडक्ट बन गया, राइट। तो दिस इज मार्कोनिकॉप्स रूल ऑफ एडिशन रिएक्शंस। तो ये दोनों रिएक्शंस करने के बाद हम लोग को मैकेनिज्म भी करना है, लेकिन हम यहाँ होमवर्क दे रहे हैं, हम 2 रिएक्शन बना दिए हैं। HW में 8 रिएक्शन स्टूडेंट्स को बनाना है, तो HW में 8 रिएक्शन प्लस 2 10 रिएक्शन टोटल हो गया। तो 10 रिएक्शंस कैसे बनाना है, तो जैसे हम इथीन प्रोपीन लिए हैं उसी तरह से ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, नॉनिन, डेकिन इस तरह से ले लेना है। कुछ साइक्लिक प्रोडक्ट भी बना लो, क्योंकि साइक्लिक भी उसी तरह से लेता है। सपोज एक साइक्लिक का ऐसा हम दे रहे हैं कि आई एम गिविंग यू साइक्लो ब्यूटीन ट्रीटेड विथ H2O, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोब्यूटेनॉल। तो इस तरह से घर में इसको बना लेना, लेकिन एरोमेटिक नहीं लेना है, एरोमेटिक लेने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मान लो 3rd नंबर में, 4th नंबर में हम लोग इसकी जगह पर कुछ और भी ले सकते हैं, क्लियर। तो इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में चलते हैं, जिसमें क्या था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या था, हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स और डाइबोरन के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं। तो रिएक्शंस में क्या होता है, सीधे 2nd नंबर, तो 2nd नंबर हम यहाँ NCERT से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म भी है, ठीक है, 3 स्टेप मैकेनिज्म जो हम लोग वहाँ देखे थे वीडियो लेक्चर में, तो यहाँ से भी उसको हम लोग करते हैं पहले। तो मैकेनिज्म 3 स्टेप का है। तो मैकेनिज्म के लिए स्टेप 1 प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो सिर्फ यदि हम स्टेप को कॉपी करके उसको यदि पेस्ट करके हम लोग बनाएं, तो यहाँ से हम रिएक्शंस का मैकेनिज्म को चलते हैं। पहले मैकेनिज्म कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड रिएक्शंस में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। थोड़ा ये स्लो हो गया, इसको फिर से हम थोड़ा रिफ्रेश करके यूज़ करते हैं।
तो मैकेनिज्म के लिए इसको हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा वर्क स्लो कर रहा था, इसलिए कभी कभी हैंग हो जाता है सिस्टम। एनीवे, तो यहाँ से हम लोग स्टेप लिख चुके हैं। तो पहला स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग देख रहे हैं मैकेनिज्म का प्रोटोनेशन से, तो प्रोटॉन का एडिशंस कराना होगा, राइट। तो हम लोग प्रोटॉन्स का यहाँ एडिशंस करा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैकेनिज्म में। तो ये वाला पार्ट स्टेप 1 ये हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन का एडिशंस कैसे कराएंगे, पहले वाटर में हम लोग ये डाल रहे हैं। तो कोई भी एल्कीन्स है, सपोज हम लोग यहाँ CH3 लिए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ CH3 लेंगे, मतलब दिस CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम लोग प्रोटोनेशन करा रहे हैं। तो प्रोटोनेशन मतलब डायरेक्ट H+ भी लिख सकते हैं, H3O+ लिख सकते हैं। तो हम लोग H3O+ लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन H3O+ यदि लिखेंगे तो इसमें एक प्रोटॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग को यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, तो प्रोटोनेटेड अल्किन्स बनेगा। तो प्रोटोनेटेड मतलब एक प्रोटॉन जुटा हुआ। तो सपोज हम लोग यहाँ CH3 लिखे हैं, तो आज मेरा पेंसिल वर्क नहीं कर रहा है इसमें। तो यहाँ हो जाएगा CH3, क्योंकि एक प्रोटॉन जुट गया, और इसके साथ अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड्स टूट चुका है। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बाद फिर इस तरह से CH2 पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन जुट रहा है, राइट। तो CH2 अब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पहला स्टेप में हो गया ये कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशंस। स्टेप 2 क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, काम नहीं कर रहा है आज मेरा वाइट बोर्ड के लिए जो स्मार्ट पेन है वो लगता है बैटरी चार्ज नहीं है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसका। तो यहाँ से हम लोग बुक में ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज काम नहीं कर रहा है। देखते हैं थोड़ा देर बाद यदि काम करेगा उसको चार्ज में लगा करके। तो दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइलिक। फर्स्ट स्टेप यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो पहला स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ अल्किन्स बन गया है। जो अल्किन्स पहले था स्टेप 1 में, वो प्रोडक्ट साइड में प्रोटोनेटेड अल्किन्स है। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्टेप 2। तो स्टेप 2 यदि हम लोग चेक करें तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल्स है। कैसे न्यूक्लियोफाइल्स है, बिकॉज इट कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हुआ, ये जैसे ही अटैक करेगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है इस तरह से।
अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का प्रोटॉन रिमूव होगा, जो स्टेप थर्ड और फाइनल स्टेप है। तो डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, तो डीप्रोटोनेशन हो रहा है मतलब प्रोटॉन का रिमूवल। तो यहाँ प्रोटॉन्स देखो रिमूव हो जा रहा है फाइनली, और जो प्रोडक्ट्स बन जा रहा है वो है सी, सिंगल बॉन्ड सी और OH बन रहा है। जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही एक्चुअल रहेगा। जैसे हम लोग इथिन ले रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल इज द इथिन, देन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी द इथेनॉल, राइट। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो इसके बाद हम लोग सेकेंड रिएक्शन जो वहाँ मैकेनिज्म इसमें वीडियो में देखे उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब डाइबोरेन के साथ रिएक्शंस करना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के साथ ऑक्सीडाइज करा देना है इन प्रेजेंस ऑफ Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के प्रेजेंस में, ठीक है। तो रिएक्शंस में हम लोग देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और वहाँ हम लोग BH3, तो BH3 मतलब एक H सिंगल बॉन्ड इधर देख के लिखा है हम लोग उसको BH3 का होल ट्वाइस, इसको डाइबोरेंस बोलते हैं, तो वो डाइबोरेंस एक्चुअली है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स साइड्स में फर्स्ट स्टेप क्या बन रहा है, प्रोपाइल बोरेन। अगेन प्रोपाइल बोरेन रिएक्ट विथ प्रोपीन टू गिव डाइप्रोपाइल बोरेन। तो सेकेंड स्टेप में देखो दूसरा एरो के बाद डाइप्रोपाइल बोरेन। अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो अच्छा से दिखाई देगा। थोड़ा ज़्यादा हाँ अब दिख रहा है। और फिर यदि हम लोग उसको नीचे देखेंगे तो फाइनली वो ट्राई अल्काइल बोरेन बन रहा है। ट्राई अल्काइल की जगह पर ट्राई प्रोपाइल, तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन गया। उसको यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के साथ हम लोग रिएक्शंस कराएंगे तो वो प्रोपेनॉल देगा, 3 कार्बन का ही प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं प्रोपेनॉल बन जा रहा है लास्ट फाइनल स्टेप में। तो इस तरह से हम लोग इसका इस रिएक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोपेनॉल बन गया। अब इस रिएक्शंस का ये इंपॉर्टेंस है कि ये एंटी मारिकोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है बिना वाटर में एडिशंस कराए ही। वाटर का इसमें नीड नहीं है। तुम लोग यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड्स में देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन वी गेट द प्रोडक्ट्स विच इज अकॉर्डिंग टू एंटी मारिकोनिकॉफ रूल्स। तो यहाँ देख रहे हैं द एडिशंस ऑफ बोरॉन टू the double bonds takes place in such a manner that the boron atom gets attached to the sp2 hybridized carbon carrying greater number of hydrogen atoms। तो greater number of hydrogen atoms में यदि वो जुटा हुआ है तो मारिकोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो रहा है ना। so the alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to Markovnikov's rule। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग डायरेक्टली ये रिएक्शंस का यूज़ करेंगे। इन दिस रिएक्शंस अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सेलेंट डाइट। तो प्रोडक्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है, एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड रिएक्शन। थर्ड वन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं जैसे हम लोग वहाँ वीडियो लेक्चर्स में देखे थे कि यदि हम लोग इसको रिडक्शंस कर रहे हैं एल्डिहाइड्स को तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल देगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, ठीक है। फर्स्ट वाला एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए कुछ भी लेंगे आसानी से हो जाएगा, बट सेकेंड वाला के लिए रिड्यूस करने के हम लोग को कुछ स्पेशल लेना पड़ेगा जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड्स। तो ये सेकेंड रिएक्शंस हो गया। थर्ड है बाय रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। तो हम लोग यदि एसिड्स या ईस्टर को भी रिड्यूस करेंगे तो भी हम लोग को अल्कोहल मिलेगा, बट एसिड को रिड्यूस करने के लिए द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं एसिड्स में डाला जा रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो अल्कोहल बन रहा है प्रोडक्ट साइड्स में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाउएवर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट्स, तो थोड़ा महंगा भी होता है और केयरफुली हैंडल करना भी होता है, एक्सप्लोसिव भी होता है, एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। सो कमर्शियली एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड
टू अल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू द ईस्टर्स, तो पहले ईस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको हम लोग अल्कोहल्स बनाएंगे, फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या कर रहा है, पहले एसिड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर बनाया जा रहा है। दिस इज द रिएक्शंस ऑफ क्लास 10 स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस। एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स गिव ईस्टर, एंड ईस्टर को फिर से रिड्यूस किया जा रहा है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल्स बन जा रहा है। अब अल्कोहल कैसा बनेगा, ये रिएक्टेंट्स का नेचर डिसाइड्स करेगा। तो R और R डैश हम लोग देख पा रहे हैं, डिफरेंट यदि रहेगा तो R डैश के साथ OH जुटेगा, R के साथ जो पार्ट उधर एसिड वाला है वो जुटेगा, मतलब R एसिड वाला पार्ट है, R डैश अल्कोहल वाला पार्ट है, राइट। तो उसी तरह का अल्कोहल्स निकल जाएगा मेरा, जिसको हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल्स में लिए थे, और जो दूसरा अल्कोहल है एसिड वाला पार्ट रिड्यूस होकर के वो ऐसे बनेगा। तो ये थोड़ा